یرکان ہو گیا. اچھا یرکان ہو گیا تھا. یرکان ہو گیا اور علاج سے ملتان تک کو کرایا اور پیٹ پانی بڑھ گیا اور جگر خراب ہو گیا اور بہت ہو گیا اور اس کے پیچھے سارا حالات بہت خراب ہو گیا اور میں آپ بیمار ہو گیا اور میں آپ علاج کرنے کی کہتی ہیں تو میرے کو پیسے کوئی نہیں ملتے. آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے رپورٹ کرائی ہیں تو میں نے 10 گھنٹے میں یرکان خون نکل گئی تو میں بڑا علاج کروایا. خون کی کمی بتائی آپ کو؟ بڑے علاج کروایا خون ٹھیک نہیں پہ تو اصغار روٹیاں نہیں پکا سکتی ہیں اتنے حالات سارے خراب ہیں. اچھا جو آپ کے شوہر ہیں وہ کتنی دیر ہو گئی ان کو فوت ہو گئے؟ اس میں 6 سال ہو گئے بہت ہو گئے. بیٹا نہیں ہے آپ کا؟ نہیں بیٹا کوئی نہیں. بیٹا بھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج ہم کافی دور یہ ایک بستی ہے وہاں آئے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری ایک آپی جی ہے، ان کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ ان کے حالات کافی خراب ہیں تو ان سے بات چیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں، کیا پریشانی ہے، کیا مسائل ہیں، ذرا بتائیں تو آپ. پریشانی ہے جو سارے حالات ہو گئے خراب سے. میرے گھر والا بیمار ہے، پہلے ٹھیک ہے بعد بیمار ہو کے یرکان ہو گیا. میں نے بہت علاج کیا کوئی نہ ٹھیک. سارے حالات پہلے ٹھیک ہے ٹھیک سے کام چلتا ہے. اس بعد میرے گھر والا جڑا ہے ادھر سے میں کام کرتا تو اس کے بعد وہ ہو گیا بیمار. کیا ہوا تھا ان کو؟ اس کو یرکان ہو گیا. اچھا یرکان ہو گیا تھا. یرکان ہو گیا اور علاج سے ملتان تک کو کرایا اور پیٹ پانی بڑھ گیا اور جگر خراب ہو گیا اور بہت ہو گیا اور اس کے پیچھے سارا حالات بہت خراب ہو گیا اور میں آپ بیمار ہو گیا اور میں آپ علاج کرنے کی کہتی ہیں تو میرے کو پیسے کوئی نہیں ملتے. آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے رپورٹ کرائی ہیں تو میں نے 10 گھنٹے میں یرکان خون نکل گئی تو میں بڑا علاج کروایا. خون کی کمی بتائی آپ کو؟ بڑے علاج کروایا خون ٹھیک نہیں پہ تو اصغار روٹیاں نہیں پکا سکتی ہیں اتنے حالات سارے خراب ہیں. اچھا جو آپ کے شوہر ہیں وہ کتنی دیر ہو گئی ان کو فوت ہو گئے؟ اس میں 6 سال ہو گئے بہت ہو گئے. 6 سال ہو گئے. پہلے حالات ٹھیک تھے؟ پہلے حالات ٹھیک تھے اس کے بعد وہ بہت ہو گئے تو اس کے بعد سارے حالات خراب ہو گئے. اچھا اس کے بعد مسئلہ بنا جائے گا. آپ اپنا علاج کروا رہی ہیں؟ میں علاج کروا رہی ہوں. اچھا اچھا. دوائیں دے کے میں پیسے کبھی میں لا لیں گے دوائی کبھی کوئی نہیں ہے. میں اس کے پیچھے آپ بیمار ہو گئے میں بہت علاج کروایا میرے کو کوئی نہیں پیسے ملے. میں کبھی کدوں لا لیں گے پیسے کبھی کدوں لا لیں گے. میں آدھا علاج کرنے کی کہتی کوئی نہیں میں ٹھیک ہی ہوتی پہ. اصل ڈاکٹر دسیا تو 6000 کی بوتل لگتی ہے میرے کو پیسے کے نہ میں بوتل نہیں لگوائی. بوتل کس چیز کی بتائی ہے؟ بوتل نہ میں نے دسیا بیٹے نے خون کی کمی میرے کو پیسے اچھا نہیں خون کی کمی پورے کرنے کے لیے یہ ڈرپ بتائی ہے؟ اچھا میرے کو پیسے کے نہ میں کوئی نہیں علاج کروایا. آپ نے ڈرپ نہیں لگوائی؟ ڈرپ نہیں لگوائی میرے کو پیسے کام آئے پیسے ہیں نہیں کوئی نہیں میرے کو اور میں علاج کریں گی یہاں پر پیسے میرے کو کوئی نہیں کبھی لا لیں گے کبھی مکمل علاج نہیں کروا رہی. میں علاج کوئی نہیں کروا رہی. اچھا جو آپ کے شوہر تھے وہ فوت ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر
कैसे आपका निज़ाम चलता है? कमाने वाला कोई और नहीं है आपका? नहीं, कोई नहीं, कोई कमा। आप हैं? हाँ, पर तो 2 बेटी हैं। तो आपकी 2 बेटियां हैं? ये 2 बेटियां हैं। अच्छा, ये भी छोटी हैं जी। एक छोटी है। बेटा नहीं है आपका? नहीं, बेटा कोई नहीं। बेटा भी नहीं। अच्छा, मतलब और भी कोई नहीं है? कोई नहीं, और भी कोई नहीं। अच्छा अच्छा, यानी कि आपके शोहर फोत हो गया, उसके बाद आप और आपकी 2 बेटियां, आप इस घर में तीनों ही हैं। हाँ जी, तीनों हैं। तो ये घर जब आपके खामद उस वक्त का बना हुआ है? हाँ जी, अच्छा, और बनाया ते साल ही ना इतने रहा ते बहुत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाए जी। तो वो जब उनको फिर ये यरकान हुआ था तो आपको अचानक ही पता चला या पहले? अचानक ही पता चलिया। अच्छा, उसके बाद कितनी देर बाद वो फोत हो गए? इलाज तो करवाने लिए कोई ना ठीक हो गया। अच्छा, 6 महीने इलाज करवाने रहा। हाँ, 6 माह आप इलाज करवाते रहे हैं? कोई ना ठीक हो, बहुत बहुत हो गया। हाँ, तो बाद मेरा शिकल ही हो गया इससे। तो कोई साढ़े नाल कोई ना सहारा किसी का नहीं। अच्छा, कोई आसरा नहीं है आपका? कोई आसरा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। वाला कोई नहीं। वगैरह कर लेती हो? नहीं, कोई नहीं। नहीं आती आपको सिलाई? नहीं, कोई नहीं, कोई काम ही कोई नहीं होता। काम होता ही नहीं। मैं बीमार में तो काम नहीं होता। बीमारी की वजह से आप कोई काम नहीं कर सकते। काफ़ी जी परेशान कौन सूरत हाल है आपकी फिर? बेटा भी नहीं है इसका। हाँ जी, बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, तो ये इनके वालिद समझ लो फोत हो गए हैं, ये बच्चे भी यतीम हो गए हैं। अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए। तो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ा रही हैं आप इनको या क्या? हाँ जी, पढ़ा रही हैं। अच्छा, चलो तो अच्छी बात है, बच्चे पढ़ रही हैं आपकी, पढ़ना चाहिए इनको। और भी कोई आपके खेती बाड़ी का कोई और निज़ाम नहीं था? नहीं, कोई नहीं। कोई आसरा नहीं है और? पानी भी एक बार लेने हम सारे। अच्छा, मोटर वगैरह तो है? मोटर तो है तो खराब हो गई है। अच्छा, खराब हुई पड़ी है? तो खराब है पानी। अच्छा, ठीक नहीं ये करवाया? कब से खराब है जी? नहीं, ठीक कोई नहीं करवाई। पैसे कोई नहीं, ठीक कोई नहीं करवाई। अच्छा, ठीक है लिए आपके पास पैसों की ज़रूरत है, पैसे नहीं है? पानी फिर कहीं और से ला के इस्तेमाल करते हैं? पानी गुवाहाटियों में बाहर लेंगे, पड़ोसियों से लेके आते हैं। अच्छा, ये देखा मैंने ना, ये आपकी बस्ती में ना एक पानी का भी मसला है। जो पानी है ना आपका, ये ठीक नहीं है, यानी साफ़ नहीं है। इसलिए अक्सर ही आपकी बस्ती में ना लोगों को यरकान है। अब आपके जो खामद है वो भी यरकान की वजह से फोत हो गए हैं। और भी हमने कईयों में घरों में ये देखा है कि उनके भी या तो वो लोग यरकान की वजह से खुद बीमार हैं, यानी उनको यरकान है, या उनके भी इस तरह किसी न किसी की डेथ हुई है, वो यरकान की वजह से हुई है। तो इसका मसला ना मेन पानी क्या होता है। पानी जो आप लोग ना ये इस्तेमाल करते हैं, ये आपका पानी साफ़ नहीं है। फ़िल्टर वगैरह पानी है ना, फ़िल्टर करके या खुद पानी उबाल कर आप पिया करें, ठीक है जी। पानी जो है ना आप लाते हैं वो उसको ना उबाल कर, चलो फ़िल्टर की सहूलत तो नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, पानी को उबाल कर पिए तो फिर वो सही हो जाता है। तो वरना ये ना यरकान की बीमारी आपकी इस बस्ती में इलाके में ना काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने देखा है और हमने गए हैं, लोगों का विज़िट किया है, तो काफ़ी लोगों की आ रही है मसला है। तो बाकी जो मुगैर हज़रात हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए यहाँ आपके फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए, ताकि लोगों को ये जो बीमारी ना यरकान की ज़्यादा होती जा रही है, इस पर काबू पाया जा सके। तो बाजी आपके हालात सुने हमने, काफ़ी जो हालात हैं ना आपके सैल हैं, क्योंकि आप 3 इस घर में हैं, आपकी बच्चियाँ हैं, वो भी छोटी हैं, पढ़ रही हैं, तो आप खुद भी बीमार रहती हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। तो हम आपकी जो मदद करते हैं, पैसे देते हैं आपको,
आपने उससे ना अपना इलाज करवाना है, क्योंकि अब इस 2 बेटियों का अभी इनका सहारा है, तो अपना इलाज मुनासिब तरीके से कराएं। अल्लाह ताला जी कर फरमाए। बाजी हम आपकी इमदाद कर रहे हैं जी। ये आपने ना इससे अपना इलाज करवाना है। जो आपको डॉक्टरों ने ड्रिप बताई है वो भी आपने लगवानी है। बाकी घर का आपने निज़ाम चलाना है जी। आपको राशन भी देते हैं, वो भी आपने इस्तेमाल करना है। राशन ले आए जी, राशन भी दें। तो बाजी इसमें ना राशन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, घी, चीनी, दालें वगैरह हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है जी। बच्चों को खाना बना कर देना है, तो इससे आपके जो घर का जो निज़ाम है ना बेहतर हो जाएगा। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर और आपके बच्चों पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए जी। तो मोहतरम सामीन, जैसा कि आपने देखा और सुना है, इस आपी जी के हालात सुने हैं, काफ़ी सूरत हाल जो है ना वो दर्दनाक और अफसोसनाक है कि इनके जो खामद थे चलो अपना काम करते थे, इनका गुजर बसर ठीक हो रहा था। ये कहती वो जब थे तो उस वक्त ही ये जो घर की जो चीज़ें हैं, ये सब निज़ाम है उन्होंने बनाया था, वही हमारे पास है। उसके बाद तो हमारे पास ये खुद बीमार रहती हैं, इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं, और इनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो अपना ये नहीं गुजर बसर जो है ना अपना खाने पकाने का बड़ी मुश्किल से कर रही हैं। कोई इनका वसैल नहीं है, कोई और आसरा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि हम इस बहन के काम आए हैं। तो हमने इनकी कुछ मदद की है। अल्लाह ताला इस तरह की फ़ैमिलियों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह ताला उनका हामी व नासिर हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन मोहतरम भाइयों का जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इन तक पहुँचते हैं और हकदारों तक अपना हक पहुँचाते हैं, उनका हक पहुँचाते हैं। और शुक्रगुजार हूँ मैं उन लोगों का भी जो हमारी वीडियो को मुकम्मल वाच करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर दें, और लाइक और कमेंट करते हैं, और हमारी वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करते हैं। अल्लाह ताला इन सब को खुश रखे, खुरम रखे, आबाद रखे। तो अल्लाह ताला सब को इस तरह की बीमारियों से महफूज रखे। सब के जो सरताज हैं उनको लंबियाँ ज़िंदगियाँ दे, उनके बच्चों को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बाजी अब आपके हालात को ठीक हो जाएंगे, इलाज करवाएंगे ना आप इससे? सही है। हाँ जी, इलाज अपना ज़रूर कराना है, क्योंकि आप वाहद सहारा हैं इन बच्चियों का भी। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी भी लंबी करे। अल्लाह ताला आपका जो ना इन पर साया जो अपना तादेर कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। तो मोहतरम सामीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी वीडियो जो है मुकम्मल ज़रूर वाच किया करें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।